नमस्ते स्टूडेंट, खुश रहो बेटियों। IJVN डॉक्टर नरेंद्र सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ शल्यतंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ जयपुर। In previous class, we discussed about initial part of anatomy of urethra. In today's class, we will discuss our rest part of anatomy of urethra. As you can see in this picture, there are two part of male urethra: posterior or proximal urethra, anterior or distal urethra. Now uh, let's start the proximal urethra. There are three parts of proximal urethra: prostatic part, and membranous part. Let's begin with pre-prostatic part. 1 to 1.5 centimeter in length, extend vertically from bladder neck to prostate, surrounded by proximal internal urethral sphincter, made up of smooth muscles bundle. Function of internal urethral sphincter: maintains the urinary continence, prevents retrograde flow of seminal ejaculate into bladder. Applied, this part can be damaged by bladder neck surgery. Transurethral resection of prostate. So, retrograde ejaculation semen occur in such patient may lead to infertility. In this picture, as you can see, the pre-prostatic part of male urethra. Now, second part, prostatic part of proximal urethra. 3 to 4 centimeter in length. It passes through the substance of prostate. Posterior wall of this part present urethral crest and prostatic sinus, and veromontum is called collicus seminis. Urethral crest, midline is mucosal fold. Prostatic sinus depression on both sides of crest. Prostatic ducts open in sinus. Elevation of urethral crest. Prostatic ureticle open here. Ejaculated at open here. Prostatic uterus small blind sac develops from mesonephric ducts or urogenital sinus, homologous to vagina of female. Also vaginal masculine. Ejaculated duct vasa deferens plus duct of seminal vesicle. In this picture, as you can see the coronal section of the urethral system and structures around structures. In this picture, as you can see all the structure of sagittal section. A picture is sagittal section, below picture is coronal section. Third part is membranous part. Shortest part 1.5 centimeter long. Second most narrow part. Most narrow part is external urethral orifice. Passes through perineal membrane. Surrounded by distal external urethral sphincter. Has voluntary control. Maintains urinary continence. Made up of urethral smooth muscles, urethral striated muscles, urethral part of liver any muscles. Mm, Now, second part is anterior urethra or distal urethra. It extends from membranous urethra to external urethral orifice. First part is bulbar urethra. Lies in the bulbosponginous of penis. Widest part of urethra. Bulbourethral glands open in it. Pinna is line corpus spongiosum. It
its terminal part is dilated in glans penis. Is called navicular fossa. Numerous urethral glands open in it. In this picture, left side, as you can see, the urinary bladder and urethra male. Sphincter of urethra. There are two types of sphincter: internal urethral sphincter, and external urethral sphincter. Internal is involuntary. It's surrounded internal urethral orifice and pre-prostatic urethra. Second, external urethral sphincter is voluntary, surrounds membranous urethra. Arterial supply. Urethral artery, branch of internal pudendal artery. Dorsal artery of penis, branches of internal pudendal artery. Venous drainage in anterior urethra, drained by dorsal vein of penis into internal pudendal vein, drain into prostatic venous plexus. Posterior urethra, drained by prostatic and vesical venous plexus, it drain into internal iliac veins. So student, this is all about the anatomy of structure of urethra, especially male urethra. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. I hope you are satisfied with this digital session. If you have any doubts and queries, please mention in comments box. I will resolve it soon. Thank you, students. Namaste, students. I, J1 Dr. Naren Singh Segaut, Assistant Professor, Department of Shalyatantra, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. In previous class, we discussed about anatomy of chest, then hemothorax, then empyema, then pneumothorax. Now we will discuss pleural effusion in today's class. Let's start from pleural effusion. What is the pleural effusion? Pleural effusion means fluid accumulation in the pleural space occurs in acute or chronic disease of the pleura. Means कोई भी प्लूरा की acute और chronic disease की वजह से fluid का accumulation हो जाए कहाँ पे pleural space में. With the exception of primary pleural disease such as malignancy or tuberculosis, most often pleural effusion is a sign of disease and not a disease itself. प्लूरल इफ्यूजन एक तरह से एक डिजीज का साइन है, ना कि एक तरह से डिजीज है, क्योंकि और जैसे मैलिग्नेंसी में, ट्यूबरक्लोसिस में, इन डिजीज के अंदर प्लूरल इफ्यूजन होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है प्लूरल स्पेस में, इसलिए एक तरह से एक सिम्टम्स है किसी डिजीज का. क्लियर? कोजेज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, इसके इफ्यूजन के कोजेज क्या क्या हो सकते हैं? जैसे ट्रांजुडेट कोजेज मींस इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये किसमें होता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में. डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से जो कोज होता है वो किस किस डिजीज में होता है? लिवर सिरोसिस में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में, सीवियर हाइपोनेट्रीमिया में, मिक्सेडिमा में, मेक सिंड्रोम में, एंड पेरिटोनियल डायलिसिस में, सार्कोइडोसिस में, इनमें ये डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर मिलता है, उसकी वजह से ट्रांजुडेट होती है. ट्रांजुडेट मतलब एक फ्लूइड का कलेक्शन होता है, तो ये कोजेज हैं ट्रांजुडेट इसमें. एक्सुडेट में सेकंड अपन पढ़ रहे हैं. एक्सुडेट में कौन कौन से कोजेज हो सकते हैं? जैसे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ प्लूरा की कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरियल न्यूमोनिया, वायरल न्यूमोनिया, फंगल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन etc, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म. सेकंड कोज बी, कोलेजन वेस्कुलर डिजीज. कौन कौन से हो सकती है? सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटस, जिसको SLE अपन बोलते हैं, सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटस. सेकंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये है कोलेजन वेस्कुलर डिजीज. ठीक है. सी, डिसऑर्डर ऑफ एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स, जो एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स आसपास के स्ट्रक्चर्स है उनकी वजह से उनमें डिसऑर्डर्स की वजह से अगर कोई फ्लूइड कलेक्शन होता है तो वो कोजेज इसमें इंक्लूड करते हैं. जैसे इसोफेजियल रप्चर होता है, डायफ्रामेटिक हर्निया हो गया, लिवर एब्सेस हो गई, सबफ्रेनिक एब्सेस हो गई, या पैनक्रेटाइटिस हो गया. क्लियर स्टूडेंट्स? डी, मैलिग्नेंसी. कोई भी मैलिग्नेंसी, जैसे मैलिग्नेंसी ऑफ लंग्स हो सकता है, या मीडियस्टाइन और अदर लिम्फ नोड की वजह से हो सकता है, या मीजोथेलेमिया हो सकता है, सुपीरियर वेना का ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है. इन सब की वजह से मैलिग्नेंसी, इन मैलिग्नेंसी की वजह से भी वहां पे फ्लूइड कलेक्शन हो सकता है. फिर है मीडियस्टाइनिटिस.
मीडियस्टाइनाइटिस, जो मीडियम स्टाइनम जो स्ट्रक्चर है स्पेस है उसके अगर कोई इन्फ्लामेशन की, जैसे कोई चेस्ट वाल इंजरी हो गई, या काइलोथोरेक्स हो गया, या हीमोथोरेक्स हो गया, मतलब काइल्स कलेक्शन हो गया, बाइल्स कलेक्शन हो गया किसमें, थोरेक्स में, या फिर ब्लड कलेक्शन हो गया किसमें, थोरेक्स में। ये सारे कॉजेज इसमें हो सकते हैं, और भी बहुत सारे कॉजेज है, पोस्टेरिया, यूरेमिया, ये सारे कॉजेज इसके हैं, ठीक। अब प्लूरल इफ्यूजन, व्हाट इज द साइन ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, फ्लूइड कलेक्शन इन प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन में फ्लूइड कलेक्शन जो इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, कि प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रखा है, उसकी वजह से जो लंग्स है वो कोलैप्स हो गया, उसमें प्रेस, उसमें कॉन्ट्रेक्शन, उसमें वो डिमेंस हो गया है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, प्लूरल स्पेस में राइट लंग में कलेक्शन, फ्लूइड कलेक्शन की, हेल्थी लंग, लेफ्ट लंग हेल्थी लंग। आपको भी कॉजेज बताए थे, ट्रांजुडेट और एक्जुडेट। तो प्लूरल इफ्यूजन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, ट्रांजुडेट और एक्जुडेट। ट्रांजुडेट कोई डिजीज की वजह से, एक्जुडेट मतलब कोई इन्फ्लामेशन प्रोसीजर की वजह से। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे? क्लासिकल प्रेजेंटेशन इज प्लेरोटिक चेस्ट पेन एंड फीवर। जो चेस्ट में पेन होगा और फीवर होगा उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे फॉरेन बॉडी में फ्लूइड कलेक्शन हो गया है। जो रेस्पिरेशन होगा एग्रीवेटेड हो जाएगा, फीवर प्रेजेंट हो जाएगा। तो जो जिसमें एक्सुडेट आपको मिलता है उसके अंदर फीवर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेटरी इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है वहाँ पे, इसलिए। इट लार्ज इफ्यूजन देयर मे बी हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस रिजल्टिंग इन डिस्निया एंड कार्डिक एम्बेरसमेंट। तो इसमें लार्ज इफ्यूजन मिलेगा, हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस मिलेगा, डिस्निया मिलेगा, और कार्डिक डिस्टर्बेंस मिलेगा, एम्बेरसमेंट। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा? फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन कुछ मूवमेंट्स देखते हैं, अफेक्टेड साइड के जो लंग्स है उसके मूवमेंट्स अपन देखते हैं। विथ ए लार्ज विथ ए लार्ज इफ्यूजन द पेशेंट इज मोर कंफर्टेबल इन सिटिंग पोस्चर। लार्ज इफ्यूजन होगा उसके अंदर पेशेंट क्या होगा, सिटिंग पोस्चर में कंफर्ट फील करेगा। क्यों? सिटिंग पोजीशन में जो जो फ्लूइड है वो लंग्स के बेस में चला जाएगा, जिससे लंग्स पे प्रेशर क्रिएट कम होगा, इसलिए वहां पे पेशेंट इजीली कंफर्टेबल फील। देयर इज इम्पेयर्ड वोकल फेमिटस होगा, स्टोनी डलनेस होगी, परक्यूजन ऑन द अफेक्टेड एरिया होगा, ब्रीथ साउंड कम हो जाएगी या एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत सारे इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन अपन क्या क्या करा सकते हैं? सीबीसी कराएंगे, ईएसआर कराएंगे, एसिड एफ भी कराएंगे, एसिड फास्ट और ट्यूबरकुलर बेसिलाई का अपन स्पुटम एग्जामिनेशन कराएंगे, मोन्टिक्स टेस्ट कराएंगे, सीरोलॉजिकल टेस्ट अपन एंटी न्यूक्लियर एंड रिमोटेड फैक्टर्स का टेस्ट कराएंगे फॉर सस्पेक्टेड कोलिजन डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है। चेस्ट एक्सरे मोस्ट इंपोर्टेंट, चेस्ट एक्सरे अपन देखेंगे, डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड। उससे क्या होगा, अमाउंट ऑफ फ्लूइड का पता चलेगा, एक्सो ब्लंटिंग, कोस्टोफ्रेगिंग, जो उसकी मीडियस्टाइनम की स्ट्रक्चर है वो उसमें दिखाई देगी। तो ये चेस्ट एक्सरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो डायग्राम, दिस डायग्राम इज शोइंग द फ्लूइड कलेक्शन इन लेफ्ट लंग। तो एक्स रे शो लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन, डार्क शेडो डिनोट्स एयर filled lungs and white shadow denotes fluid। जो डार्क शेडो है लंग्स की, वो उस लंग्स में वो नॉर्मल हेल्थी लंग्स है, लेकिन जो फ्लूइड कलेक्शन की वजह से क्या हो गया, वो व्हाइट शेडो बन रही है, डिनोट्स फ्लूइड। डायग्नोस्टिक प्लूरल एस्पायरेशन एक्स एग्जामिनेशन, अपन प्लूरल इफ्यूजन प्लूरल एस्पायरेशन करेंगे और उसका एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। कैन बी थोरेकोसेंटेसिस, इसमें अपन ट्रीटमेंट जो करेंगे वो है थोरेकोसेंटेसिस। थोरेकोसेंटेसिस में क्या होता है इसका ट्रीटमेंट में, थोरेकोसेंटेसिस आल्सो नोन एज थोरेकोसेंटेसिस, और थोरेकोसेंटेसिस आल्सो नोन एज थोरेसेंटेसिस और प्लूरल टैप is an invasive procedure to remove fluid or air from pleural space for diagnosis और therapeutic purpose। थोरेकोसेंटेसिस का अपन यूज डायग्नोसिस पर्पज के लिए भी कर सकते हैं और थेरेपेटिक पर्पज के लिए भी कर सकते हैं। इसमें एबनॉर्मल एयर का भी अपन रिमूव कर सकते हैं, एवोकेट कर सकते हैं, और वहां से फ्लूइड भी कलेक्शन, फ्लूइड भी अपन रिमूव कर सकते हैं। तो थोरेकोसेंटेसिस का यूज अपन न्यूमोथोरेक्स के ट्रीटमेंट के लिए भी कर सकते हैं और प्लूरल इफ्यूजन के लिए भी। एक कैनुला और होलो
needles is carefully introduced into the thorax through the mid axillary line. Mid axillary line से अपन उसके ये मिड एक्सिलरी लाइन, यहाँ से अपन लेफ्ट साइड में मिड एक्सिलरी लाइन से इसके साइड में ये डायग्राम में दिखा रखा है, लाइन से अपन 8th और 9th और 10th इंटरकोस्टल स्पेस में अपन डालेंगे। द मैक्सिमम रिकमेंडेड लिमिट इज 1000 to 15 mm सिंगल थोरेकोसेंटर। ये मिड एक्सिलरी लाइन से अपन उसमें डालेंगे और ये 8, 9, 10 और 10th इंटरकोस्टल स्पेस में अपन उसके डालेंगे, ठीक है। तो उसमें अपन ये नीडल डालेंगे और एक सिंगल बार में अपन कितना 1000 से 15 ml फ्लूइड वहां से कलेक्शन अपन रिमूव करेंगे। दिस इज शोइंग द थोरेकोसेंटेसिस, ठीक है। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ this is the treatment of pleural effusion. Yes students, this is all about the pleural effusion. Thanks students.